Hey everyone, it's your Sedative Physio and I welcome you all to this lecture. So in this lecture we are going to discuss about the manual muscle testing for the cervical spine. काफ़ी समय पहले मैंने एक लेक्चर डाला था about the MMT जिसमें हमने इंट्रोडक्शन मेनली देखा था MMT के, like what are the grades of MMT, what are the process to measure the MMT for any joint, for any muscle, और इसके साथ साथ प्रिकॉशंस के बारे में हमने डिस्कस किया था, क्या क्या मेजर प्रिकॉशंस हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए कभी भी MMT को मेजर करते समय. ओके, सो नाउ बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे मेरे पास रिगार्डिंग द होल सीरीज ऑफ MMT. सो हियर वी आर स्टार्टिंग द MMT जिसमें हम हर एक लोकेशन, हर एक जॉइंट, हर एक मसल्स के, हर एक मेजर मसल्स के बारे में स्पेशली वी विल डिस्कस द प्रोसेस टू चेक द, वी विल डिस्कस द प्रोसेस फॉर द असेसमेंट ऑफ MMT step by step. Okay. So if you want the notes of these all lectures, you can simply DM me on the Instagram or message me on the WhatsApp. The number is in the description box below. Or you can also join our WhatsApp group where I update different topics जहाँ पर हमारे discussions होते रहते हैं, questions के discussions होते रहते हैं. So you can join the group also. The link of that particular group is also in the description box below. Okay. So let's start this lecture. But before starting this lecture, अगर आपने वो MMT का introductory lecture नहीं देखा है, grades के बारे में नहीं समझा है, then I will suggest कि पहले आप जाकर MMT के grades को समझें, MMT के introductory lectures को देखें, then move on to this cervical spine MMT testing. Okay, so let's move on to the topic. Let's move on to the discussion of the cervical spine MMT. सर्वाइकल में बहुत सारे मूवमेंट्स हैं, जैसे हमारे पास सर्वाइकल का फ्लेक्शन है, सर्वाइकल एक्सटेंशन है, सर्वाइकल रोटेशन है. सो मेनली वी विल डिस्कस अबाउट द MMT इन दिस थ्री डिफरेंट मूवमेंट्स. सर्वाइकल फ्लेक्शन, सर्वाइकल एक्सटेंशन एंड सर्वाइकल रोटेशन, इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप. ओके, सो फॉर द सर्वाइकल फ्लेक्शंस दीज ऑल मसल्स आर इंपॉर्टेंट. यहाँ पे हमारे पास स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड, लॉन्गस कोलाई, स्कैलन एंटीरियर, स्कैलन मीडियस, स्टर्नोहायोइड एंड ओमोहायोइड, ये सभी के सभी वन ऑफ द मेजर मसल्स हैं सर्वाइकल फ्लेक्शन के लिए. किसी भी मूवमेंट में दो तरह के मसल्स का रोल होता है. एक हमारे मेजर मसल्स के ग्रुप होते हैं और एक हमारे एसेसरी मसल्स होते हैं. ओके, सो मेजर मसल्स आर दोज मसल्स दैट आर मेनली इन्वॉल्व्ड इन दैट पर्टिकुलर मूवमेंट, और एसेसरी मसल्स क्या होते हैं, उसे और फैसिलिटेट करते हैं और उसे और सही ढंग से करने में हेल्प करते हैं. सो इन द सर्वाइकल फ्लेक्शन वी हैव दिस ऑल एज द मेजर मसल्स एंड द रेंज ऑफ मोशन ऑफ द सर्वाइकल फ्लेक्शन ranges from 0 to 35 to 45 degree. Now let's move on to the main stuff, that how we can check the MMT for the cervical flexion, what are the steps. Okay, so for the cervical flexion, but before starting and diving into this MMT assessment, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप सभी को ध्यान में रखने हैं. वो बात ये है कि कभी भी हम अगर MMT का असेसमेंट कर रहे हैं, we should always start the assessment of MMT from grade 3. Okay, we should always start the MMT assessment from grade 3. Grade 3 कहने का मतलब क्या? That the patient completes the range of motion against the gravity but without any external resistance. That's the grade 3. So we should always start the MMT assessment from grade 3. अब grade 3 के बाद जैसा कंडीशन हो, we can move up towards the grade 4 and 5 और नीचे आ सकते हैं grade 2, 1 या 0 की तरफ. Okay, so we should start the MMT from grade 3. Now we have grade 4 and 5. सर्वाइकल फ्लेक्शन के grade 4 और grade 5 के असेसमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? First of all, the patient's position will be supine with arms at the side and head supported on the table. ये theoretically discuss कर रहे हैं. In the next slide इसे एक इमेज के मदद से भी समझेंगे. So the patient's position is supine. Patient हमारा supine position में रहेगा. And most important, the head of the patient will be supported on the table. हमारे patient का head supported होगा table पे. थेरेपिस्ट पोजीशन, स्टैंडिंग नेक्स्ट टू पेशेंट्स हेड. पेशेंट्स के हेड के जस्ट बगल में थेरेपिस्ट हमारा स्टैंडिंग पोजीशन में रहेगा. हैंड फॉर द रेसिस्टेंस वी विल बी प्लेस्ड ऑन द फोरहेड एंड अदर हैंड कैन बी ऑन द चेस्ट. सो द थेरेपिस्ट पोजीशन क्या होगा? सबसे पहले हमारा पेशेंट सुपाइन लाइन में होगा. द हेड विल बी सपोर्टेड ऑन द टेबल. थेरेपिस्ट विल बी स्टैंड जस्ट नेक्स्ट टू पेशेंट्स हेड, और थेरेपिस्ट का एक हाथ पेशेंट के फोरहेड पर होगा और दूसरा हाथ पेशेंट के चेस्ट पे रह सकता है. बट इफ देयर इज एनी इनस्टेबिलिटी इन द ट्रंक ऑफ द पेशेंट, तो उस कंडीशन में पेशेंट का दूसरा हाथ पेशेंट के अपर ट्रंक को स्टेबल भी करने में काम आ सकता है. सो थेरेपिस्ट विल स्टैंड जस्ट नेक्स्ट टू द पेशेंट्स हेड एंड वन हैंड ऑफ द थेरेपिस्ट विल बी प्लेस्ड ऑन द पेशेंट्स फोरहेड
for assistance and other hand on the chest. Now what is the process? Then इस पोजीशन में प्लेस करने के बाद we will ask the patient to flex his or her neck upwards and the therapist will give resistance through the forehead. जो forehead पर हमारे therapist ने hand प्लेस किया था for the resistance, तो वहां से हमें resistance provide करना है and the patient will move the neck and the patient will flex the cervical against that particular resistance. यहाँ पर दो conclusion आ सकता है. First conclusion क्या? If the patient is able to perform the range of motion against the मैक्सिमम रेसिस्टेंस, अगर मैक्सिमम रेसिस्टेंस के अगेंस्ट प्लेस हमारा जो पेशेंट है वो सर्वाइकल को फ्लेक्स कर पा रहा है, देन इट इज ग्रेड 5, एब्सोल्युटली नॉर्मल. इफ द पेशेंट कंप्लीट्स द रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट मॉडरेट रेसिस्टेंस, थोड़ा कम रेसिस्टेंस में अगर ये कर पा रहा है, देन इट इज ग्रेड 4. नाउ फॉर ग्रेड 5 एंड 4 ये कुछ ऐसा होगा. हियर यहाँ पर देख सकते हैं, इट इज दिस इज द थेरेपिस्ट एंड दिस इज आवर पेशेंट. यहाँ पेशेंट हमारा क्या, सुपाइन लाइंग में हमारा पेशेंट लेटा हुआ है. द पेशेंट्स हेड इज ऑन द टेबल, इट इज रेस्टिंग ऑन द टेबल. हमारे थेरेपिस्ट का एक हाथ पेशेंट के फोरहेड पे है, दूसरा हाथ पेशेंट के चेस्ट पे है. नाउ द पेशेंट विल मूव अपवर्ड्स. नाउ द पेशेंट विल फ्लेक्स हिज और हर नेक, हिज और हर सर्वाइकल, एंड एट द सेम टाइम द थेरेपिस्ट विल गिव द रेसिस्टेंस in opposite to the patient's movement. So इस कंडीशन में अगर मैक्सिमम रेसिस्टेंस पर मूवमेंट कर पा रहा है पेशेंट, फुल रेंज ऑफ मोशन, नॉट पार्शियल. इफ द पेशेंट इज एबल टू परफॉर्म फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट द रेसिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द थेरेपिस्ट इन मैक्सिमम कंडीशन, देन इट इज द ग्रेड 5 कंडीशन. एंड इफ इट इज एबल टू परफॉर्म द फुल रेंज ऑफ मोशन in moderate resistance, then it is the grade 4. Okay, so this is how we can check for the grade 5 and grade 4. Now let's see for grade 3. For grade 3 the patient's position, यहाँ पर patient's position बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने grade 4 और grade 5 में देखा था, supine with head supported on the table. The patient's position is absolutely same as we have discussed in the grade 4 and grade 5. The patient will be in the supine lying and the head will be completely supported on the table. यहाँ पर the therapist will stand next to patient's head. Patient के head के just बगल में हमारा therapist खड़ा रहेगा as we have discussed earlier in grade 4 and grade 5. फर्क बस ये है कि यहाँ पर हमारा जो पेशेंट, हमारा जो थेरेपिस्ट है, थेरेपिस्ट का हैंड फोरहेड पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमें रेसिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करना है. व्हाई? बिकॉज ग्रेड 3 इज लाइक द पेशेंट विल कंप्लीट द फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट द ग्रेविटी बट विदाउट द रेसिस्टेंस. सो द थेरेपिस्ट विल जस्ट स्टैंड नियर टू द पेशेंट्स हेड. प्रोसेस क्या होगा? हियर वी विल आस्क द पेशेंट टू फ्लेक्स हिज और हर नेक. Simply there is no resistance that is being provided on the patient's forehead, so the patient will simply flex the neck into complete range of motion without any external resistance and against the gravity. यहाँ पर सिर्फ ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस लगेगा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है. ओके, सो व्हाट विल बी द कंक्लूजन? कंक्लूजन ये है कि पेशेंट विल कंप्लीट द रेंज ऑफ मोशन, sorry, it is not against maximum resistance. The patient will complete the range of motion against gravity, but without the external resistance. ओके, सो ये कंक्लूजन हमारा है. ग्रेड 3 को एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं. द पेशेंट्स पोजीशन विल बी एब्सोल्युटली सिमिलर एज दैट ऑफ द ग्रेड 4 and 5. Therapist will just stand next to the patient's head, but he will not apply the pressure, he will not apply the resistance through the forehead. यहाँ पर because we are checking for the grade 3. Then we will ask the patient to flex his or her neck into the complete range of motion against the gravity without giving any external resistance. और conclusion क्या होगा? अगर हमारा patient complete कर पा रहा है full range of motion against the gravity without any external resistance, then it is the grade 3. So जैसा मैंने पहले बताया था, we should always start the MMT assessment from this grade 3. अब अगर हमारा patient यहाँ पर ये movement कर पा रहा है without the resistance, then we can go upward. हम एक स्टेप ऊपर जाकर देख सकते हैं कि क्या ये रेसिस्टेंस के अगेंस्ट में मूवमेंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. अगर कर पाया देन इट इज गुड, वी कैन गो फॉर द ग्रेड 4 and 5. अगर नहीं कर पाया देन वी विल मूव डाउन टुवर्ड्स द ग्रेड 2, 1 और 0. ओके, सो वी कैन स्टार्ट द असेसमेंट फ्रॉम ग्रेड 3 ऑफ एनी जॉइंट. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन चेक फॉर द ग्रेड 3. नाउ ये हमारा है, दिस इज द पोजीशन फॉर ग्रेड 3. यहाँ पर हमारे थेरेपिस्ट का एक हाथ बिल्कुल चेस्ट पर है और दूसरा हाथ थेरेपिस्ट का फ्री है. इट इज नॉट ऑन द फोरहेड एज वी हैव डिस्कस्ड इन द ग्रेड 4 and 5. द पेशेंट्स वन हैंड विल बी प्लेस्ड ऑन द फोरहेड फॉर द रेसिस्टेंस, बट इन द ग्रेड 3 देयर इज नो नीड फॉर द रेसिस्टेंस. सो द थेरेपिस्ट वन हैंड विल बी फ्री एंड अदर हैंड विल बी ऑन द चेस्ट ऑफ द पेशेंट. इन केस इफ द पेशेंट्स अपर ट्रंक एंड द पेशेंट्स ट्रंक मेनली इज वीक, उसके मसल्स वीक हैं, अनस्टेबल हैं, तो इट इज, तो ये हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा सर्वाइकल फ्लेक्शन करने में
परेशानी हो. So we can do what? We can stabilize the shoulder, we can stabilize the upper trunk with our both hands as a therapist. Then we will ask the patient to go for the flexion. So this is what grade 3. Now for the grade 2, grade 1 and grade 0, the therapist position and the patient's position is absolutely same. यहाँ पर हम क्या करेंगे? The patient will be supine with head supported on the table. जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, patient's position is same throughout the assessment for the cervical flexion. ठीक है. थेरेपिस्ट कहां पर होगा? यहां पर थेरेपिस्ट का पोजीशन चेंज होगा. थेरेपिस्ट विल स्टैंड एट द हेड ऑफ द टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द पेशेंट. नाउ इफ दिस इज द टेबल एंड और ये हमारा पेशेंट लेटा है, ये हमारे पेशेंट का हेड है, तो हमारा थेरेपिस्ट यहां पे खड़ा रहेगा. जनरली इसके पहले वाले ग्रेड्स में हम कहां खड़े थे? वी वर स्टैंडिंग जस्ट नियर बाय द पेशेंट्स हेड, जस्ट नेक्स्ट टू द पेशेंट्स हेड. बट यहां पर हम कहां रहेंगे? जस्ट एट द हेड ऑफ द टेबल जस्ट एट द हेड ऑफ द टेबल एंड फेसिंग द पेशेंट. ठीक है. यहाँ पर होने के बाद हमारा फिंगर्स का मेन रोल है. यहाँ पर द फिंगर्स ऑफ बोथ हैंड, स्पेशली यहाँ पर इंडेक्स फिंगर हम कह सकते हैं दैट इंडेक्स फिंगर ऑफ बोथ हैंड्स विल ओवर द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड टू पाल्पेट देम ड्यूरिंग द टेस्ट. सो यहाँ पर इस कंडीशन में हम जनरली स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड पर फिंगर्स प्लेस करेंगे एंड वी विल पाल्पेट इट ड्यूरिंग द टेस्ट. नाउ एज वी ऑल नो दैट इन द ग्रेड 0, 1 एंड 2 देयर विल बी नो मूवमेंट. ठीक है. होगा भी तो ग्रेड 2 में पार्शियल मूवमेंट हो सकता है, ग्रेड 1 में तो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होगा और ग्रेड 0 में भी कोई मूवमेंट नहीं होगा. तो वहां पर हमें क्या करना है? वहां पे हमें कॉन्ट्रैक्शन को फील करना है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या नहीं मसल का. सो फॉर द चेकिंग ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्शन वी कैन प्लेस द फिंगर ओवर द बोथ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड ड्यूरिंग द टेस्ट. नाउ यहां पर करना क्या है? हमारा पेशेंट अभी न्यूट्रल पोजीशन में है. नाउ वी विल आस्क द पेशेंट टू रोल हिज और हर हेड टू द लेफ्ट एंड राइट. यानी कि अगर हमारा पेशेंट ये है तो पेशेंट के हेड को रोल कराना है टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड टुवर्ड्स द राइट. जैसा आई थिंक आई हैव एडेड द डायग्राम. ओह सॉरी, इट इज मिस्ड. सो जनरली हमारा पेशेंट बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में है. द पेशेंट इज इन सुपाइन लाइन, हेड सपोर्टेड ऑन द टेबल. हमें क्या करना है? नीचे से दोनों स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड की तरफ एज अ थेरेपिस्ट वी विल प्लेस आवर फिंगर्स, स्पेशली द इंडेक्स फिंगर, एंड देन वी विल आस्क द पेशेंट टू रोल हिज हेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड एंड टुवर्ड्स द राइट साइड. ओके. इस कंडीशन में आने के बाद कंक्लूजन क्या निकलेगा? इफ द पेशेंट इज एबल टू डू पार्शियल रेंज ऑफ मोशन, अगर पार्शियल रेंज ऑफ मोशन पेशेंट कर पा रहा है देन इट इज द ग्रेड 2. ओके. अब यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने अपने पेशेंट को बोला कि राइट साइड रोल करने के लिए. इफ द पेशेंट इज रोलिंग टुवर्ड्स द राइट साइड देन दिस इज डन बाय द लेफ्ट स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड. ये याद रखना है, इसे ध्यान में रखना है. ऐसा नहीं कि पेशेंट राइट साइड टर्न कर रहा है, राइट साइड रोल कर रहा है एंड वी आर पाल्पेटिंग द राइट sternocleidomastoid. That's absolutely wrong. If the patient is rolling towards the right side, we will palpate the left side. We will palpate the left sternocleidomastoid because right sternocleidomastoid produces roll to the left side and left produces to the right side. Okay. So if the patient is able to do partial range of motion, then it is the grade 2. If there is no motion, patient कोई भी motion नहीं कर पा रहा, but during the palpation we can feel some contraction. We can see some contractile activity in one or in both muscles, एक में या किसी भी दोनों में. ठीक है. then it is the grade 1. okay, mind it, there is no movement in grade 1 but there is only the contraction in the muscle. okay, लास्ट वन इज द ग्रेड 0. ग्रेड 0 में कुछ भी नहीं दिखेगा, ना ही कोई मूवमेंट होगा और ना ही कोई कॉन्ट्रैक्शन हमें फील होगा ड्यूरिंग द पाल्पेशन. पेशेंट ट्राई भी करेगा तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं हो पाएगा. सो दैट्स द ग्रेड 2, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 0. This is how we can go for the cervical flexion. Now second one is the cervical extension. These all are the muscles. ये बस 4 ही muscles मैंने यहाँ पे मेंशन किया है. इसके अलावा और भी बहुत सारे muscles हैं हमारे पास cervical extension के लिए, पर majorly we have these 4 muscles for the cervical extension. Now if you go for the procedure for the cervical extension for grade 4 and grade 5, पेशेंट्स पोजीशन विल बी प्रोन. यहाँ पर पेशेंट्स हमारा प्रोन होगा विथ हेड ऑफ द एंड ऑफ द टेबल. हमारा पेशेंट प्रोन में रहेगा. पेशेंट का जो हेड है वो नेक के बाद जो हमारे पेशेंट का हेड का पोर्शन है वो टेबल के आगे हवा में रहेगा वो. ठीक है. थेरेपिस्ट पोजीशन क्या होगा? स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द पेशेंट्स हेड. हमारा जो थेरेपिस्ट है यानी कि हम पेशेंट्स के हेड के जस्ट बगल में खड़े रहेंगे. One hand is placed at the parieto-occipital area to give resistance downward and forward, and other hand below the chin. So the therapist यानी कि हम कहाँ खड़े रहेंगे? We will stand just next to patient's head. उसके साथ साथ
हमारा जो एक हाथ होगा, वन हैंड विल बी ऑन द पैराइटो ऑसिपिटल एरिया ऑफ द पेशेंट। इससे क्या करना है, इससे हमें रेसिस्टेंस देना है टुवर्ड्स द डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। दूसरा हेड कहाँ होगा, दूसरा हेड चिन पे होगा। चिन पे क्यों होगा, वाई, बिकॉज हमारा पेशेंट का जो हेड है वो हवे में है, इट इज नॉट सपोर्टेड। टू गिव द सपोर्ट वी विल प्लेस आवर अदर हैंड ऑन द चिन। नाउ after achieving this position we will advise the patient to lift up the head and look at the ceiling पर देखने का मतलब कि it will go into complete extension. Okay, and during the whole movement the therapist will assist the movement। कैसे, इसी पैराइटो ऑसिपिटल एरिया पर हैंड प्लेस करके यहाँ पर रेसिस्टेंस प्रोवाइड करना है। नाउ इफ द पेशेंट इज एबल टू कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन अंडर द मैक्सिमम रेसिस्टेंस, इट इज अगेन ग्रेड 5। अंडर मॉडरेट रेसिस्टेंस इट इज ग्रेड 4। सिंपल, ये ग्रेड 4 और ग्रेड 5 का मतलब हर जगह सेम ही रहने वाला है, बस फर्क क्या है, द पेशेंट्स पोजिशन, द थेरेपिस्ट पोजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज हाउ वी विल डू द असेसमेंट फॉर द ग्रेड 5 एंड ग्रेड 4। यहाँ पर हमें, दिस इज द थेरेपिस्ट, ये हमारा थेरेपिस्ट है, दिस इज आवर पेशेंट प्रोन लाइन में है विथ हेड जो हमारे पेशेंट का, इट इज आउटसाइड द टेबल। अब हमारा पेशेंट क्या कर रहा है, आवर पेशेंट इज एक्सटेंडिंग द सर्वाइकल, ये हमारा पेशेंट सीलिंग पर देखने का ट्राई कर रहा है, एंड द थेरेपिस्ट हैंड इज प्लेस्ड ऑन द पैराइटो ऑसिपिटल एरिया एंड द थेरेपिस्ट इज गिविंग रेसिस्टेंस डाउनवर्ड्स अगेंस्ट द मूवमेंट। और दूसरा हाथ यहाँ पर चिन पर है ताकि हम सपोर्ट दे सके पेशेंट को इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल चेक फॉर द ग्रेड 5 एंड ग्रेड 4 ऑफ द सर्वाइकल एक्सटेंशन। नाउ ग्रेड 3 के बारे में अगर हम बात करें, हियर द पेशेंट्स पोजीशन विल बी बिल्कुल जैसा हमने ग्रेड 4-5 में देखा, बिल्कुल वही पेशेंट पोजीशन है, प्रोन विथ हेड ऑफ end of the table, arms at the side, बिल्कुल सेम as we have discussed in the grade 4 and grade 5 of cervical extension। therapist का position standing next to the patient's head, बिल्कुल standing position में रहेगा पेशेंट्स के हेड के बगल में। यहाँ पर कोई भी हैंड प्लेसमेंट नहीं होगा पेशेंट का ऑन द पैराइटोसिपिटल एरिया, बिकॉज यहाँ पे हमें कोई भी रेसिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करने हैं। नाउ इन दिस पोजिशन द पेशेंट इज एडवाइज्ड टू रेज अप द हेड, पेशेंट को हम बोलेंगे हेड को एक्सटेंड करने के लिए, हेड को उठाने के लिए। एंड व्हाट विल बी द कंक्लूजन, इफ द पेशेंट इज एबल टू कंप्लीट फुल रेंज ऑफ मोशन विदाउट रेसिस्टेंस and against gravity। यहाँ पर ग्रेड 3 में क्या होता है कि there is no external resistance but there is the influence of gravity। So if the patient is able to go for complete ROM against the gravity without any resistance, then it is the grade 3। Next, ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन गो फॉर द ग्रेड 3। ग्रेड 3 करने के ये दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, इन दिस कंडीशन हमारे पेशेंट का दूसरा हाथ फ्री है, वाई, बिकॉज देर इज नो नीड टू अप्लाई द रेसिस्टेंस एज इट इज द ग्रेड 3। दूसरा हाथ चिन के पास है टू सपोर्ट दिस एंड द पेशेंट विल नाउ डू द सर्वाइकल एक्सटेंशन। इस कंडीशन में एक ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस आ रहा है बस नीचे की तरफ और कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है, एंड इन दिस कंडीशन द पेशेंट विल एबल टू डू द मूवमेंट, देन इट इज ग्रेड 3। नाउ इन केस अगेन इफ द ट्रंक इज वीक, ये हमारा पेशेंट का ट्रंक है, ये ट्रंक वीक है, उस कंडीशन में हम कुछ ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल हमारे दोनों हाथ से पेशेंट के ट्रंक को स्टेबलाइज करेंगे एंड देन वी विल आस्क द पेशेंट टू डू द सेम। ये तभी करेंगे जब हमारे पेशेंट के ट्रंक मसल्स में वीकनेस है, जब हमारे पेशेंट का जो ट्रंक है दैट इज अनस्टेबल, देन वी विल गो फॉर दिस मेथड। आफ्टर दिस ग्रेड 3 लेट्स मूव ऑन टू ग्रेड 2, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 0। इन तीनों के लिए द पेशेंट्स पोजिशन विल बी फुल्ली सपोर्टेड विथ प्रोन लाइंग। ग्रेड 3, 4 और 5 में पेशेंट का प्रोन लाइंग था, पर हेड जो था वो ऑफ द टेबल था, पेशेंट का हेड वो हवे में था। बट फॉर द ग्रेड 0, 1 एंड 2 द पेशेंट्स पोजीशन विल बी प्रोन विथ हेड फुल्ली सपोर्टेड ऑन द टेबल। यहाँ पे हेड को फुल्ली सपोर्टेड स्टेज में रखना है। थेरेपिस्ट he or she will stand just next to the patient's upper trunk। पेशेंट्स के अपर ट्रंक के पास हमारा थेरेपिस्ट खड़ा रहेगा। बोथ हैंड्स ऑन सर्वाइकल रीजन एंड बेस ऑफ द ऑसिपुट फॉर पाल्पेशन। पेशेंट का दोनों हाथ सर्वाइकल रीजन पे रहेगा और बेस ऑफ द ऑसिपुट के बेस पर रहेगा पाल्पेशन के लिए। देन द पेशेंट इज एडवाइज्ड टू रेज अप द हेड एंड लुक अप। अगेन हमें पेशेंट को नेक को एक्सटेंड करने के लिए कहना है। Now, if the patient is able to do the partial range of motion, हमारा पेशेंट अगर partial range of motion कर पा रहा है, it is the grade 2। If there is contraction felt on the extensor muscle but there is no movement, कोई movement नहीं हो पा रहा है, but we can feel the contraction on the extensor muscles, it is the grade 1। and grade 0 means there is nothing, कोई contraction भी नहीं है और कोई भी movement नहीं है, ठीक है। Now we have this cervical rotation, ये हमारा हुआ cervical flexion and cervical extension। Now third one is our cervical rotation। For the cervical rotation in the grade 3, grade 4 and grade 5, इन तीनों को एक बार में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सुपाइन, हमारे पेशेंट का पोजीशन सुपाइन होगा विथ cervical spine in neutral position।
Patient's position is supine, cervical spine neutral position, head supported on the table and turned towards one side. ये या तो हम लेफ्ट साइड टर्न करा सकते हैं या फिर हम राइट साइड टर्न करा सकते हैं, किसी भी एक साइड टर्न करा सकते हैं. हाँ, हम कराकर देख सकते हैं. अगर हम राइट साइड टर्न कराकर चेक करें तो दोबारा से हमें लेफ्ट साइड में टर्न कराकर चेक करना होगा. ओके, वी शुड हैव टू चेक bilaterally, not unilaterally. So patient will be in supine with cervical spine in neutral position, head supported on the table with head turned to one side, either towards the left or the right side. Therapist will stand at the head of the table facing the patient. ठीक है, थेरेपिस्ट हमारा हेड ऑफ द टेबल के पास खड़ा होगा, बिल्कुल पेशेंट को फेस करते हुए. हैंड फॉर रेसिस्टेंस इज प्लेस्ड ओवर द साइड ऑफ द हेड अबव द ईयर. आवर पेशेंट विल बी इन द सुपाइन. हमारा पेशेंट एक साइड टर्न करेगा अपने हेड को टुवर्ड्स द लेफ्ट और टुवर्ड्स द राइट, रोल कर लेगा. और हमारे थेरेपिस्ट का क्या पोजीशन रहेगा? थेरेपिस्ट विल स्टैंड जस्ट नेक्स्ट टू द हेड ऑफ द टेबल एंड द थेरेपिस्ट विल प्लेस वन हैंड ओवर द ईयर ऑफ द पेशेंट टू गिव द रेसिस्टेंस. यहाँ पर हमें रेसिस्टेंस प्रोवाइड करने हैं, इसलिए हमारा जो पेशेंट होगा वो ईयर पर एक अपना हाथ प्लेस करेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज द पेशेंट, ये हमारा पेशेंट है, ठीक है, और पेशेंट ने अपने हेड को इधर टर्न कर रखा है. दिस वन इज द ईयर ऑफ द पेशेंट. सो यहाँ पर हमारे थेरेपिस्ट का एक हाथ कहाँ होगा? इधर होगा. नाउ द पेशेंट विल रोल टुवर्ड्स द न्यूट्रल साइड. सी, यहाँ पर हमें पहले पेशेंट को क्या करना है? पहले हमें पेशेंट को राइट या लेफ्ट साइड रोल करके प्लेस करना है इन द सुपाइन. Then we will place the hand over the ear of the patient and then we will give the resistance and will ask the patient to rotate his or her head back to the neutral position. ठीक है, यानी कि हम रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे और हमारा पेशेंट हेड को रोटेट करके न्यूट्रल पोजीशन पे आने का ट्राई करेगा. अगर वो मैक्सिमम रेसिस्टेंस पे कर पा रहा है रेंज ऑफ मोशन, इट इज ग्रेड 5. मॉडरेट रेसिस्टेंस पे कर पा रहा है, इट इज ग्रेड 3. बिना किसी रेसिस्टेंस के कर पा रहा है, इट इज ग्रेड 3. ओके, सो ये 3 ग्रेड्स हमारे क्लियर हो गए फॉर द सर्वाइकल रोटेशन. नाउ फॉर द ग्रेड 0, 1 एंड ग्रेड 2, इन तीनों के लिए द पेशेंट्स पोजीशन विल बी सिटिंग विथ ट्रंक एंड हेड मे बी सपोर्टेड अगेंस्ट अ हाई बैक चेयर. यहाँ पर हमारा पेशेंट का पोजीशन क्या होगा? इट इज इन द सिटिंग पोजीशन ऑन द हाई बैक चेयर, यानी कि पेशेंट के बैक को बिल्कुल सपोर्टेड रखना है. ठीक है, हेड बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन पर रहेगा. थेरेपिस्ट पेशेंट के बिल्कुल फ्रंट में खड़ा रहेगा. थेरेपिस्ट विल बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट. नाउ बिना कुछ किए पेशेंट को सिर्फ एडवाइस करना है अपने हेड को रोटेट करने के लिए टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड टुवर्ड्स द राइट साइड फ्रॉम द न्यूट्रल पोजीशन. 3, 4, 5 में क्या था? हमने पहले हेड को टर्न करा दिया था लेफ्ट राइट इन द सुपाइन एंड देन वी विल गिविंग द रेसिस्टेंस देयर एंड हमने उसमें पेशेंट को एडवाइस किया था टू कम बैक टू द न्यूट्रल पोजीशन. बट हियर इन दिस ग्रेड 0, 1 एंड ग्रेड 2 हमारा पेशेंट सिटिंग में रहेगा इन द न्यूट्रल पोजीशन एंड वी विल डू नथिंग. वी विल जस्ट आस्क द पेशेंट टू रोटेट हिज और हेड टुवर्ड्स द बोथ लेफ्ट एंड द राइट साइड फ्रॉम द न्यूट्रल पोजीशन. If the patient is able to complete the partial range of motion, it is grade, it is not grade 5, sorry. It is grade 2. If the patient is not able to do the movement, but contraction is seen, इस कंडीशन में वी कैन विजुअलाइज द कॉन्ट्रैक्शन. हम कॉन्ट्रैक्शन को देख सकते हैं, और अगर नहीं देख पा रहे हैं तो वी कैन पाल्पेट इट ड्यूरिंग द, अगर हमारा पेशेंट ट्राई कर रहा है मूवमेंट का तो विद द पाल्पेशन वी कैन चेक फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स. सो इफ देयर इज नो मूवमेंट बट देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, इट इज ग्रेड 1. एंड इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्शन एंड नो मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं है और मूवमेंट भी नहीं है, तो उस कंडीशन में इट इज ग्रेड 0. ठीक है, यानी कि कुछ भी नहीं है, देयर इज नो मूवमेंट एंड देयर इज नो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मूवमेंट. सो दिस इज हाउ वी कैन चेक द एमएमटी फॉर द सर्वाइकल रोटेशन, द सर्वाइकल फ्लेक्शन एंड द सर्वाइकल एक्सटेंशन. नाउ ये जो मैंने सर्वाइकल फ्लेक्शन और सर्वाइकल एक्सटेंशन बताया, इट इज द होल नेक फ्लेक्शन. जैसे नेक फ्लेक्शन में वी हैव 2 डिफरेंट फ्लेक्शंस, एक हमारा कैपिटल फ्लेक्शन होता है और एक हमारा सर्वाइकल फ्लेक्शन होता है. कैपिटल फ्लेक्शन यानी कि हमारे स्कल का जो थोड़ा सा फ्लेक्शन होता है वो, और सर्वाइकल फ्लेक्शन यानी कि पूरे के पूरे सर्वाइकल जो स्पाइन है उसका फ्लेक्शन. सो दिस इज द, अगर मैं सर्वाइकल फ्लेक्शन के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है, सो दिस इंक्लूड बोथ कैपिटल फ्लेक्शन अलॉन्ग विद द होल सर्वाइकल फ्लेक्शन एंड सेम गोज विद द सर्वाइकल एक्सटेंशन. ओके, सो दिस इज द लेक्चर ऑन द सर्वाइकल स्पाइन एमएमटी. आई होप अभी ये सभी आपको समझ आया होगा. इफ इट इज बेनिफिशियल टू यू, do share it with your batchmates and colleagues and do subscribe the channel. I will see you guys in the next lecture with a new topic. Till then, be happy and keep learning.